Very good morning and Jai Janendra to one and all present. Let's begin our day by invoking blessings of Lord Almighty. Let's join our hands for Navkar mantra. Yeah, I'm playing. Namo Arihantaram, Namo Kevaram, Namo Ariyaram, Namo Ayaram, Namo Sarvakamanam, Namo Sarvakamanam. Ito bhakta namo karo, sabko kaam karo karo. Mangaladam sarvesi, paramam havai mangalam. Paramam havai mangalam. Paramam havai mangalam. पर्यूषण पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. May I take this opportunity to welcome our Honorable Director, sir. Good morning, sir. Our Principal, ma'am. Dear parents, the resource person of the day, Mr. Ashish. Welcome, Mr. Ashish. Beautiful students and the teaching fraternity of MSMS. There is no greater violence than to deny the dreams of the children. To make their dreams come true, parents and teachers, home and school, family and friends, nature and environment, everything and everybody has to work in perfect synchronization. It is only then we are able to give to the society the finest product. And this is what we at MSMS believe in. Through series of interaction with parents, we ensure that we are giving the best to our children and are not missing on anything vital. Today's interaction is one more step in the same direction. It is said, healthy body resides in a healthy mind. We need to be at peace with our head and heart to learn and receive. And one of the best ways to do it by losing oneself in music and meditation. So to begin with, let us see one small video clipping to restore happiness. नीला नीला ये गगन, नीला नीला
धरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। Yes, earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, mountains and the seas are the excellent schoolmasters. And yes, we have to learn from them. If the nature can paint such a beautiful canvas, why can't we paint the beautiful lives of the students? Why can't we do the chamatkar? Why can't we be that painter? And that is what we are trying to be. With this, may I now invite our visionary principal ma'am, Mrs. Ruchika Sukhija, to share her ideology and welcome the resource person of the day. A very good morning. Thank you so much, ma'am, for this musical beginning of the day. A very pleasant morning to our worthy management members, Director Sir, Ashish Sir, parents, my dear colleagues, and of course, my dear students. Dear students, today you are the pivot of our discussions, our interaction, our deliberations. A year ago, in month of August, we used to talk about missions, goals, dreams,
objectives, targets. But in this pandemic year, it has replaced, the vocabulary has been replaced by the words such as unpredictable, unprecedented. There is so much of uncertainty clouding around us that it has actually faded our vision of long-term and short-term goals. Undoubtedly, your studies are going on, but what is missing is rigor and preparedness. With physical school, gone are the routines, gone is the discipline, gone is the regularity and punctuality. Unlike any other year, the onus of learning is more on you. You are responsible for self-discipline. You are responsible for regularity in studies. In a sense, you have become in charges. In charges, whether you want to get up timely or not. In charges, whether you would attend the class or not. In charges, whether you would switch on the camera or not while the class is going on. And most importantly, in charges, whether you would actually study and do the follow-up or not. In a way, all of you are more empowered. But how to use this power is also your prerogative. So on one hand, we have students who are blossoming as they are utilizing this time like they have never done before and are coming out with flying colors. On the other hand, we have students who, in absence of self-discipline, are gradually sliding down. And I am not saying all of this to blame you. I do understand that the intentions are good, but impetus is missing. Drive is lacking. We all know that discipline is the bridge between goals and accomplishments. We all want to do it, but sometimes we also feel that we are already doing enough. This brings me to the second point, our preparedness for our board exams, our preparedness for our future. So we do understand that yes, studies are going on, assessments are going on, but in absence of the subjective, the descriptive, the detailed assessments, there are various skills that even teachers are not able to judge and of course analyze. Therefore, the teachers have mutually decided that now onwards, we are going to have one descriptive assignment per month, and this will be in addition to all the assignments and tests that are already being done. Here, we solicit the cooperation of both the parents as well as students. You have to do all of this honestly. There is no fun in checking the assignments which are copied from Google or from guides. And thirdly, parents play the most significant role, and the role has become all the more important in these times when the students are at home. Here we all understand that imposing rules, imposing routines will not work. We have to work out rules and regulations together. And that is why all of us are here together to talk about these and many more concerns that we have when the students are almost halfway into class 12. Today is indeed a pleasurable and a very meaningful occasion wherein three important stakeholders, students, parents, and teachers have come together on a common platform to discuss these concerns. And this discussion is being deliberated by none other than Mr. Ashish Agarwal, our resource person of today. So we welcome you. It is our privilege that you are here with us today. Mr. Ashish Agarwal needs no introduction. We all know him as a man of intellect who always provides us with an out-of-box and feasible solutions. He's an MSMS alumnus, a very involved parent, and has also conducted many workshops for our teachers and students. Recently, he has taken a wonderful initiative of opening Picement.com
wherein he is providing guidance to the students, and I repeat, it is the guidance to the students free of cost all across Delhi. With this batch, he shares a very, very special bond as he has conducted IAA program with this batch. And therefore, he has closely interacted with each one of them. So it would not be an exaggeration if I say that yes, parents might not be aware of certain aspects of our students that Mr. Ashish Agarwal is aware of. So all of you are aware of this fact, and I see lot many faces here, lot many faces of the parents who have been with us in this joyful discovery of IAA program. Now, without much ado, let us begin with the interaction. I request all the parents, students, and teachers to make this session very interactive and this interaction meaningful. I request all of you to raise your hands in case you want to respond and ask your queries so that we can unmute you. Thank you so much. Over to you, Ashish sir. Thanks a lot. Excuse me, we very warmly extend a hearty welcome to Shri Shripal Jain ji, Vice Chairman of Mahavir Senior Model School. Shripal ji, very good morning, Jai Jinendra, and welcome to the webinar, please. Thank you. Over to Ashish Agarwal. Good morning, Shripal sir, esteemed management members, Ruchika ma'am, director sir, all my teachers, parents and dear students. आज का ये जो वेबिनार या वर्कशॉप जो हमने रखा, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है. इट इज इन फैक्ट नॉट समथिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट. इट विल बी मोर अबाउट एक्सपीरियंस शेयरिंग, एंड आई वुड ट्राई टू गिव द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ व्हाट वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग. यहाँ पर मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के लिए रिक्वेस्ट भी करूँगा, आग्रह भी करूँगा. ये टॉपिक या इस बात पर हमें बात रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स बोर्ड एग्जाम्स. इसके लिए दो तीन पहलू हैं जो इससे मैं शुरू करना चाहूँगा. साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम कहते हैं तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस हर वक्त हमारे मन में चलते रहते हैं. कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो दिखाई देती हैं, दे आर available for the eyes to see, for ears to listen, but most of the times almost all of us are going through unconscious processes which operate deep inside us without even our conscious awareness. इन कारणों से कई चीज़ों का और अपने वातावरण से तालमेल बिठाने का यात्रा जो है या जो प्रयास है वो अधूरा रह जाता है. अभी ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले मेरे साथ घटी. मैं पटेल चेस्ट किसी काम से गया था, और पटेल चेस्ट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, आप सब जानते हैं. तो वहाँ अक्सर मेरा एक फेवरेट शौक है कि अगर कुछ समय बचा हो तो एक चाय वाले के पास मैं चला जाता हूँ. तो उस दिन मैं उस चाय वाले के पास चला गया. जैसे रोड साइड स्टॉल होती है, तो जवानी के दिनों में वहाँ पे अक्सर जाया करते थे. वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे थे जो शायद अपने कोचिंग सेंटर से आ रहे थे, या मैं नहीं जानता कि किस कारण से थे, बट दे वर डिस्कसिंग, एंड उनके जो डायलॉग्स थे मैं आपसे शेयर करूँगा. पहला लड़का जो बोला, अरे यार हमारे बैच से ना ऊपर वाले को खास प्रेम है, हमारी पूरी जो इस बार ये 12 दे रहे हैं ना सबकी फुल वाट लगा रखी है. ये उनके शब्द थे. दूसरा बोला, हाँ यार और पता है 15 तारीख से यूटीवी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला. तो तीसरा जो थोड़ा स्टूडियस लग रहा था वो बड़ा परेशान सा था. वो बोला कि भाई एक बात बताऊं, स्कूल वाले जो पढ़ाते हैं वो अक्सर सिर के ऊपर से चला जाता है, और ट्यूशन वाला जो सर पढ़ा रहे हैं वो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा. मम्मी पापा को लगता है हम यहाँ आ रहे हैं, पर कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा हमें भी नहीं पता अभी. अब जब ये बात उनकी मैं सुन रहा था तो वहां से मेरा सोचना शुरू हो गया, बिकॉज मैं अपने आसपास के माहौल में जब भी इस तरह के प्रश्न देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपना रोल अदा करना चाहिए. जब ये बात हुई तो उसके बाद 2-4 दिन बाद मैं आया, रुचिका मैम से मैंने बात करी, बाकी टीचर से भी बात करी, तो समस्याएं कुछ समझ में आने लगी. अभी रुचिका मैम ने सबको बताया जैसे कि IAA प्रोग्राम मैंने जो किया था इस बैच के बच्चों के साथ किया था, तो इस बैच के सभी बच्चों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेरे पास उपलब्ध है. और ये सारे बच्चे आप सब मेरे मित्र हैं और इन्होंने अपने दिल की सारी बातें मुझे बताई हुई हैं.
काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ, समझता हूँ, बट यहाँ पर एक बात पे मैं सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा, बात शेयर करना चाहूँगा। जब फरवरी 20 में मैंने IAA प्रोग्राम का रिजल्ट इस बैच से शेयर किया था, तो 2 मेजर फाइंडिंग निकल करके आई थी। आउट ऑफ दी 107 स्टूडेंट्स, 107 बच्चों का टोटल असेसमेंट मैंने किया था इस 12th क्लास के, जिसमें से 21 वर डिस्कवर्ड एज एट ए लेवल वेयर उनका स्कोर ऐसा था कि प्रिडिक्टेड स्कोर उनका बोर्ड में थोड़ा सा लोअर एंड पे आ रहा था, या देवर इन अ क्रिटिकल ग्रेड ऑफ परफॉर्मेंस। और इसके साथ साथ जब साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन किया था, तो मैंने लगभग 32 साथियों को, 32 अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया था जिनके पास एक टेंडेंसी थी कि वो फिसल करके नीचे जा सकते हैं। हालांकि वो उस वक्त अच्छे स्कोर्स पर थे, बट उनके साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल पहलू ऐसा काम कर रहा था कि जिस कारण से उनकी परफॉर्मेंस स्लिप हो सकती है। विद दिस बैकग्राउंड मैंने, और ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि क्या 12वीं क्लास के बच्चे वाकई इतना टेंशन वाला माहौल झेल रहे हैं, तो मैंने इस चीज को दोबारा असेस किया। मैंने सभी सब्जेक्ट टीचर्स से कुछ डेटा मंगवाया, पिछले 7 दिन से ये डेटा मेरे पास सभी टीचर्स ने दिया, उन सभी टीचर्स का धन्यवाद। और इस डेटा को जब मैंने कंपाइल किया, अपने तरीके से असेस किया, तो रिजल्ट्स वर मोर सरप्राइजिंग। लेट मी शेयर द रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ यू। ये जो 2 पहलू मैंने अभी बताए कि जो बच्चे वल्नरेबल या क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो आज ये आंकड़ा बढ़ करके 35 पे पहुंच गया है। यानी जो 21 बच्चे थे, वो बच्चे आंकड़ा बढ़ करके 35 पे आ गया है। क्योंकि साइकोमेट्रिक असेसमेंट में फ्रेश नहीं कर पाया, बट जो एकेडमिक इवैल्यूएशन मैंने किया, दैट मीन्स 21 से 35, मतलब 14 बच्चे नए इस ब्रैकेट में ऐड हो गए। इसको अगर क्लास वाइज शेयर करूं मैं, तो 12th A के जहां पहले 4 बच्चे थे जो क्रिटिकल फेज में आ रहे थे, अब वहां पर 15 अगस्त को, यानी कल की डेट का असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 फरवरी को 4 बच्चे थे, वहां 15 अगस्त को 10 बच्चे इस कैटेगरी में आ गए। बी सेक्शन में, 12th B में 14 बच्चे थे जो 2 फरवरी को इस लिस्ट में आ रहे थे, अब 15 अगस्त की असेसमेंट में 15 बच्चे हो गए हैं वो। और इसी तरह 12th C में जहाँ 3 बच्चे थे 2 फरवरी को इस कैटेगरी में, वहाँ 10 बच्चे अब हो गए हैं। तो इस तरह से टोटल 10, 15 और 10 मिला करके लगभग 35 बच्चे ऐसे हैं जो वल्नरेबल या क्रिटिकल पोजीशन में आ गए हैं। नाउ ये जैसे ही रिजल्ट मेरे पास आया, तो ये जो मन की बात थी कि ये बात करनी है और इन बच्चों तक पहुंचना है, सब तक पहुंचना है, ये बहुत ज़रूरी हो गया। एंड इसीलिए मुझे लगता है आज का जो ये टॉपिक है हमारा, डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड फॉर द बोर्ड एग्जाम, ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये शायद सभी बच्चों को अप्लाई करेगा जो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर पूरी इंडिया में इस बोर्ड एग्जाम या 12th क्लास में इस वक्त हैं, परंतु कुछ बातें मैं रेफर जो कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली महावीर स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, और उसी तरफ मैं ध्यान भी रखूंगा। पर ये इन जनरल ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये चीज फेस कर रहे हैं। अभी हमने, मैम ने भी बताया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्लास 12th हैज पास्ड। अप्रैल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब ये लगता था कैसे हम एडजस्ट करेंगे नई नई चीजों को। अब लगभग 50% हमारा हिस्सा 12th का बीत चुका है। बट ये 2 प्रश्न अभी भी यक्ष प्रश्न बने हुए हैं, वेयर डू वी स्टैंड एंड आर वी रेडी। हम कहाँ खड़े हैं और क्या हम सही खड़े हैं, क्या हम तैयार हैं। अब इस पहलू पर और विचार डालने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और टीचर से अलग अलग 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप रिस्पांस देकर मुझे बताएं कि क्या ये जो मैं ऑब्जर्व कर पाया इन दिनों में, क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा अपने साथियों से, विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से। मैं 3 ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या आप पिछले 2-3 महीने में ये चीज प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला, अनकंट्रोल्ड स्लीप, यानी आप चाह कर भी अपनी नींद की को कम नहीं कर पा रहे, नींद की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा, कंफ्यूज्ड या अचानक ब्लैंक स्लेट टाइप फिनोमेना आ जाता है, यानी आपने पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, फिर भी अचानक बैठे बैठे लगता है जैसे स्लेट किसी ने साफ कर दिया, ब्लैक बोर्ड रब कर दिया, ब्रेन एकदम क्लीन हो गया, कुछ याद ही नहीं रह रहा। और तीसरा,
अचानक देयर आर एपिसोड्स ऑफ पैनिक या अनइजीनेस विच मेक यू अनइजी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्या ये 3 अवस्थाएं आप प्रोग्रेसिवली महसूस कर रहे हैं? सभी बच्चों से मेरा ये सवाल। कैन सम ऑफ दी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर? Students, you can unmute yourself and answer. Good morning, sir. Sir, I am Bhavya. Sir, I am observing these 3 observations for the last 2 months. आपके साथ ये तीनों चीजें आप महसूस कर रहे हैं? Yes, sir. ज्यादा क्या लगता है इसमें से? Sir, ज़्यादा uncontrolled sleep. Okay. Good. Thank you for your answer. I will come back Good morning, to you again. sir. Jia this side. Same with me, sir. Especially uncontrolled sleep and panicness and all. Okay. Thank you, Jia. Good morning, sir. Mishika this side. I am a student of 12C. Yeah. I am facing the uncontrolled sleep thing and thirdly the uneasy feeling at times. Okay. Not more often, but sometimes. Okay. Thank Thank you. you. Thank you for your answer. Good morning, sir. Yes. Sir, my name is Akshit Jain. Sir, पैनिकनेस ज़्यादा होती है सर मुझे। सर जब भी आपको टेस्ट panic होता ज़्यादा है होता है। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसका मैं जवाब दूं आने वाले कुछ मिनट्स में। थैंक यू। नाउ माय क्वेश्चन नाउ शिफ्ट्स टू पेरेंट्स। जितने अभिभावक या पेरेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आपने पिछले 2 से 3 महीने में इन आगे वाली 3 बातों में बढ़ोतरी महसूस की है अपने बच्चे के माध्यम से, अपने बच्चे के अंदर या उसके व्यवहार में? पहला, पलटकर जवाब देना। किसी भी बात पे पलटकर जवाब देने की टेंडेंसी बढ़ गई है। दूसरा, कोई भी साधारण डिस्कशन जहां वर्बल डिस्कशन होता है अचानक वो आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर में बदल जाता है सडनली। आपने सोचा नहीं होता कि ऐसा कोई पॉइंट है कि वो आर्ग्यूमेंट बनेगा, बट वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। एंड तीसरा, बहुत क्रिटिकल है बिहेवियर ये, बच्चे एक तरह का स्टोन वॉलिंग बिहेवियर आ रहा है। स्टोन वॉलिंग बिहेवियर मतलब कि डिस्कशन आगे ना बढ़े इसके लिए वो या तो रोना शुरू कर देते हैं या अपने को आइसोलेट कर लेते हैं या वो चुप होके बैठ जाते हैं। साइलेंट, एब्सोल्यूट साइलेंट, नो कम्युनिकेशन। क्या इस तरह का बिहेवियर आपको आपके बच्चे में बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है पिछले 2 से 3 महीने में? माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द पेरेंट्स, इफ यू कुड शेयर सम ऑफ योर फीडबैक आई वुड बी ऑनर्ड। Any parent who would like to share his view on this question? I request the parents to come forward with their candid observations, because unless and until we keep forward our concerns, we can't hope to find solutions to them. Hello, good morning, sir. I'm Mishka's mother. Yes. सर बच्चे आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। Okay. तो आए हैं बच्चों में, थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो ऐसे शुरू हो जाते हैं। जी, और कोई बदलाव आपने महसूस किया हो? नहीं सर, बस बोलते बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हम कुछ कहते हैं पढ़ने के लिए या नॉर्मली कोई बात करें तो बस शुरू ही हो जाए, मम्मा आप तो हर टाइम बोलते रहते हो, जी। ये वो शुरू हो जाते हैं बच्चे। जी जी, थैंक यू फॉर फीडबैक मैम। कोई और बोलना चाहे अगर पेरेंट? Hello, good morning, sir. जी, गुड I मॉर्निंग। am Vanita Jain, Akshit mother. Okay. Sir, sometimes verbal discussion became argument. ओके, तो वही जैसा सेम मैं बताया मिशन की मदर ने कि वही सेम होता है कि बच्चों को बोलते हैं तो कहते हैं हम कर तो रहे हैं बट वो वाला रिजल्ट जैसे कि आपने बताया कि बच्चे ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं बट उतना ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। क्या आपको ये चीज बढ़ती हुई महसूस हो रही है पहले की तुलना में? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि अभी 3-4 मंथ्स हो गए हैं
तो वही मान लो मैम ने जैसे कराया 4-5 चैप्टर्स, अभी भी अगर हम उन चैप्टर्स का टेस्ट लिया, जैसे कि मैंने कल टेस्ट लिया, तो मुझे वो लगा ही नहीं कि 4-5 मंथ से बच्चा वही कर रहा है, वही वाले चैप्टर्स रिपीट कर रहा है, बट उसमें वो चीज उतना अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाया जितना कि उसको करना चाहिए था। Thank you for your feedback, ma'am. Any other parent? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं सुहानी की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ जी, सेम बोलिए। प्रॉब्लम्स हैं सुहानी के साथ में। आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो स्टॉप ही करने पड़ते हैं। Now, I would ask another observation, which now is from the teacher's side. मेरा सभी टीचर्स से, खासतौर से जो टीचर्स इस 12th क्लास को पढ़ा रही हैं, मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहूँगा। Sir, you are on mute. Hello. My now question is towards the teachers. Of all the teachers of class 12, have you observed these three behaviors progressively increasing in your class? Number 1, inconsistent class presence. मतलब बच्चा शायद पहली क्लास में आ रहा है, पहले सेशन में आ रहा है, पर दूसरे तीसरे में गायब हो रहा है, या सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास मिस कर रहा है. इट इज लाइक मोर सो कॉलेज लाइक बिहेवियर. एक लेक्चर अटेंड किया, फिर दूसरा मन नहीं किया तो नहीं अटेंड किया. दूसरा, लेट वर्क और नो वर्क इज इंक्रीजिंग. इट इज स्प्रेडिंग टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड तीसरा, do you actually feel there is a deficient real academic assessment of students? Ashish sir, good morning. I would like to say, Anshu Jain here. Yes, these trends are increasing in the classes. These three trends are increasing in the classes. Yes. Please mention your subject also. I take computer science for class 11th and 12th, and 12th B and 12th C. I am aware, but I think for the larger audience it is to be. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Sir, I'm Kanchan. I take English for 12th A and C. Sir, this behavior I'm noticing when initially when the classes started and I gave the assignments, students were quite regular, they were enthusiastic, but now, you know, like I have to push them up for the assignments. I have to remind them, send constant reminders. Please submit your assignment, it's for you. Yes, sir. And sir, when the class is towards the end of the day, sometimes I see that students have attended the first class, but fourth class somehow, you know, they miss out. And another thing which I've noticed is, sir, if the 4 or 5 minutes are left, so there's a tendency they exit and I tell them that these 5 minutes are most important because we will be recapitulating the message of the entire period will be in these 5 minutes. But yes, this is increasing. And so one thing, as a parent, not as a teacher, I would say something. When the parents were telling their problems, my daughter is sitting with me. She immediately said, "कभी reason जानने की कोशिश कर रही है कि हम argumentative क्यों हो गए हैं?" So this please came. Thank her from my behalf. Please thank her on my behalf. I will just come back to the reasons. She's sitting here and immediately she reacted कि कभी सोचो हम why are we like that now? Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I want to add something. I'm Geeta Kumar, teaching physics to 12C. Sir, my worthy colleagues have already mentioned whatever we are facing, like they are exiting the class 5 minutes before and having an excuses that we have network issue or like this, or at the end of the day, if we have a class, even then they have this kind of excuse. Regarding these assignments, let me tell you that whenever we are giving them this warning that I'm going to put it on the parents group, or I'm going to call your parents, or if suppose I'm calling 2-3 parents, then I am observing that so many, you know, on Google Classroom assignments are submitted. So, and I don't know
as you said, that we don't know that whether they are doing it on their own or just copying it from somebody. This is there, but even after that, like in our faculty meetings or otherwise, we are discussing that at least the child is writing, at least the child is viewing the content, even if he is doing like that. So we are satisfying ourselves with that only. So we need solution for that also. Thank you, sir. Ashish, thank you very much for making it so very interactive. I think sir. it's wonderful and stimulating. But I think it would be interesting to know that what could be the positive changes that are taking place. Maybe some students respond to what positive is happening to them. Are they learning cooking? Are they helping their mothers? And how the parents are feeling and how the teachers are feeling. Because in Sir, whatever... I will come to that point, but right now, since I was coming to only the Right. board preparedness. Carry so I on, will- carry on as per your own Yeah. plan. Please carry on as per your own plan. I Yeah. just thought that whatever came to... Definitely, there are positives also happening, but right now, since the Yes. concern was on the preparedness towards the boards, so I wanted that everybody, all the teachers, parents, and even the students should know कि ये behavior बन किस तरह से रहे हैं. हो सकता है आपका बच्चा भी ऐसा बिहेव ना करना चाह रहा हो, पर उससे ऐसा बिहेवियर हो रहा है. हो सकता है एक टीचर भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ना देना चाह रही हो, पर उससे वो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. इसी प्रकार से हो सकता है पेरेंट ना सोच रहा हो कि उसने आर्ग्यू करना है बच्चे के साथ या बच्चे को गुस्सा दिलाना है, बट वो हो रहा है, वो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है अपनी बात. तो ये इसके क्या कारण है, इस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं, मैं इस पर सीधा आना चाहूंगा. ना सबसे पहले मैं पेरेंटल पर्सपेक्टिव से माता पिता का एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है या उसके कारण से कैसे इसमें योगदान आ रहा है वो बताऊंगा, फिर टीचर का और फिर बच्चे का. तो पहला जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब आज कोविड के टाइम में ई क्लासेस के माहौल में पेरेंट अब टीचर का रोल प्ले कर रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि पेरेंट की फिजिकल गार्जियनशिप में है बच्चा. पहले स्कूल में जब होता था तो बच्चा स्कूल की या टीचर्स की फिजिकल गार्जियनशिप में होता था, बट इस वक्त लर्निंग के टाइम पे बच्चा पेरेंट की गार्जियनशिप में है और पेरेंट ही उसका टीचर बना हुआ है एक तरह से, या उसको मॉनिटर कर रहा है. तो मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एज असर्टिव एज द टीचर. जितना टीचर एक बच्चे के साथ असर्टिव हो कि उसको एक पर्टिकुलर रोल में या लर्निंग मॉडल में ला पाता है, शायद माता पिता उतना नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनकी अपनी इमेज बच्चे के साथ अनकॉन्शियस से जुड़ी हुई है. दूसरा, जो पेरेंट का ज्यादा ध्यान होता है वो होता है टाइम पर सोए, टाइम पर उठ जाए, टाइम पर खाना खा ले, जवाब जो है पोलाइटली दे, और कभी कभी या पढ़ता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो वो उसी का शुक्र मना लेते हैं कि चलो पढ़ता हुआ दिख रहा है बच्चा. तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स इस 4 माइंडसेट से गुजर रहे होते हैं. और मैं अगर ये क्वांटिफाई करना चाहूँ, ये मेरा अपना असेसमेंट है, तो लगभग 80% पेरेंट्स, बच्चा अगर ये चारों व्यवहार को ठीक ठाक कर रहा है तो बहुत ज्यादा शिकायत या उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का कि उसे एकेडमिक्स की तरफ आना है या नहीं आना है उस पर बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं करते. यहाँ पर जो एक पहलू छूट जाता है वो है बच्चे के लिए गोल सेटिंग, बच्चे को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लाना और बच्चे को हैंड्स ऑन काउंसलिंग करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि उन गोल्स के लिए उसको क्या क्या और करने की जरूरत है. जो कि अगर रियल स्कूल होता तो ये टीचर ये काम कर रहे होते. तो कहीं ना कहीं पेरेंट का जो अपना अनकॉन्शियस इमेज है बच्चे के मन में, वो उसकी एक्सपेक्टेशन को उसी हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा है. दूसरा, अगर हम आए टीचर्स के ऊपर, ना टीचर्स का अगर हम देखें तो वर्चुअल बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह से बच्चे उस चीज से इम्पैक्ट हो रहे हैं. यू कैन कॉल देम एज perhaps the outcomes of the virtual teaching environment. Most of the teachers, I would again refer to around 70 to 80%. उनके साथ ये होता है कि जब एक वर्चुअल क्लास है तो वर्चुअल क्लास में शायद थोड़ा सा पर स्टूडेंट अटेंशन जो है थोड़ा सा डाइल्यूट होता है. दूसरा, असाइनमेंट जो हो रहा है अगर वो टाइम पे आ रहा है, दैट इज द ओनली प्रूफ ऑफ स्टडी. अगर बच्चे को जो असाइनमेंट दिया वो अगर टाइम पे आ रहा है या बच्चे ने 1-2 जवाब क्लास में दे दिए तो वही उसकी प्रूफ ऑफ स्टडी बन रहा है. फिजिकल ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है. तीसरा, बच्चा यदि ओबीडियंट है, बात आपकी मान रहा है, फर्स्ट करो उसने काम नहीं किया और आपको कह रहा है मैम अच्छा आज नहीं किया मैं कल कर दूंगा,
तो आपके पास और कोई सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, आप उसको पूरे नंबर दे देते हो उसी चीज के। और तीसरा, अगर बच्चा आपके साथ नॉन एग्रेसिव है और बहुत तरीके से तहजीब से आपके सब्जेक्ट में पेश आ रहा है, तो भी शायद आप उसको एक रीजनेबल एवरेज मार्क्स दे करके आप असेस कर लेते हो। यहाँ पर जो बैलेंस मैंने कहा, 70 से 80% टीचर्स इसी तरह का ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बिहेवियर कर रहे हैं, हमारे स्कूल में भी और ऑलमोस्ट हर जगह। इसमें कहाँ मिसिंग आ रहा है? मिसिंग यहाँ आ रहा है, जब रियल क्लास या रियल टॉपिक्स होते थे तो रिलेटिंग टू द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड और ग्रिलिंग द चाइल्ड फॉर इन क्लास पार्टिसिपेशन और क्रिएटिंग टॉपर्स आउट ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट्स, एंड तीसरा प्रैक्टिस का लोड बढ़ाना, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं ये शायद कहीं थोड़े से कम हो रहे हैं। खास तौर से अबव एवरेज स्टूडेंट्स में टॉपर ढूंढ पाना या टॉपर के लिए बच्चे के मन में ललक पैदा कर पाना, जो शायद रियल क्लास में ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है। मुझे लगता है ये रोल थोड़ा सा पीछे छूट रहा है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा है, बट मतलब कुछ जगहों पर ये ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। अब ज्यादा चीज आते हैं, जैसे अभी कंचन मैम ने अपनी बेटी का उदाहरण दिया था, तो मैं वहां आता हूँ। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये समझना आपको, पेरेंट्स को, टीचर्स को और आप सबको, इवन बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। नाउ सबसे पहला रीजन कि बच्चों के व्यवहार में इस तरह की ये अनुभव क्यों आ रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इट इज बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर exposed to virtual sensing than real sensing। बहुत टिपिकल पहलू है वर्चुअल सेंसिंग, मतलब इनको एक कृत्रिम एनवायरनमेंट में अपनी सेंसेस को इवॉल्व करना पड़ रहा है रादर देन रियल एनवायरनमेंट। इट इज जस्ट लाइक, अगर आप बर्फ को हाथ में पकड़ते हैं तो आपको ठंडी लगती है, पर अगर मैं कहूं कि मानो आपने बर्फ पकड़ी है और उतना ही ठंडा महसूस करो, तो शायद ये हर व्यक्ति उतनी सक्षमता से नहीं कर सकता। इट इज लाइक होल्डिंग अ हॉट कप ऑफ टी। जब आप एक गर्म प्याली चाय पकड़ते हैं तो आप सावधान होते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होल्डिंग अ हॉट कप ऑफ टी और सावधान रहने की तब बात करते हैं, तो उस वक्त की अलर्टनेस कहीं कम होती है रिश्वत की उस वक्त की जब आप एक्चुअली चाय की प्याली हाथ में पकड़ते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल अबाउट वर्चुअल सेंसिंग एंड रियल सेंसिंग। इसीलिए जब आप स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की बात करते हैं, लाइक अलर्टनेस, लाइक हार्ड वर्क, लाइक परसिवियरेंस, लाइक एक सब्जेक्ट की समस्याओं को दूर करना या बार बार पढ़ना या प्रैक्टिस करना, शायद उन शब्दों का जो रियल मीनिंग है वो भी कम होके आंका जा रहा है बच्चों के द्वारा। दैट इज वन रीजन। दिस इज वन डीपर साइकोलॉजिकल रीजन जो बहुत अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। दूसरी बड़ी चिंता जो इन बच्चों को हो रही है, शायद आप लोग या हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे, वी एज टीचर्स एंड पेरेंट्स आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनश्योर। यानी वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में है ये बच्चे जहां ये श्योर नहीं है। और इसका क्या नुकसान है आप समझिए। इट इज लाइक they are like passengers who are having a boarding pass and they are stranded at the airport not knowing when will the flight take off। यानी इन बच्चों की हालत ऐसी हो गई है जिनके पास बोर्डिंग पास आ चुका है, ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि इनका हवाई जहाज कब उड़ेगा, 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद या 1 महीने बाद, इन्हें नहीं पता। अब इस कारण से होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये कारण पहलू क्यों जरूरी है समझिए। आप यदि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा हो और आप किसी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर आपको कहे अच्छा आप बैठ जाओ, डॉक्टर अभी आपको देख रहा है, तो आपके इंतजार का एक समय सीमा होता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके गुस्से का पारा बढ़ता जाएगा कि आखिर मुझे बैठाया क्यों हुआ, मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा। उसी प्रकार से ये बच्चे इसी एंजाइटी की मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि इनकी रियल पढ़ाई, रियल असेसमेंट कब चालू होगी और कैसे चालू होगी। और इस कारण से इवोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। कैसे?
जैसे मान लीजिए अगर मैं हॉस्पिटल वाला उदाहरण दूं, अगर किसी का पेट का दर्द अभी तीव्र है और 5 मिनट बाद और बढ़ गया और 15 मिनट बाद और बढ़ गया, तो जो 15 मिनट बाद वो जवाब देगा वो ज्यादा गुस्से में देगा। 5 मिनट पहले तक तो वो उम्मीद करेगा कि शायद डॉक्टर आने वाला है, पर 15 मिनट बाद उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा कि डॉक्टर आने वाला है। तो इसी तरह से अगर हवाई अड्डे वाले उदाहरण पे मैं आ जाऊं, सपोज आप यात्री बन के हवाई अड्डे पे गए, सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, तो आप तो 2 बजे पहुंच गए सुबह, पर कुछ लोग नहाकर नहीं आए, कुछ लोग नाश्ता नहीं करके आए, किसी ने चाय नहीं पी, किसी ने कपड़े नहीं बदले। अब सडनली सुबह का 10 बज गए, तो वो अपने आप को इनअप्रोप्रिएट महसूस करेगा, यार मैं तो नहाया भी नहीं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मेरे को भूख भी लग रही है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है। तो वो जो एंजाइटीज हैं वो आपके इंतजार करने के समय को और ज्यादा दिक्कत वाला समय बना देंगे। यही कुछ हमारे इन बच्चों के साथ इस वक्त हो रहा है। ये लोग 12वीं में आ गए हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें एक उम्मीद थी कि ये नया सब्जेक्ट है, मैं नई शुरुआत करूंगा 12वीं में। अब उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक को पढ़ते हुए एक प्रॉब्लम आ गई, तो ये उम्मीद थी चलो मैं किसी से पूछ लूंगा, वो नहीं पूछ पाया। फिर अगले टॉपिक में दिक्कत आ गई, वो भी नहीं पूछ पाया। इस तरह से हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उलझते जा रहे हैं, जहां उनके पास उसको समझाने वाला और उनको उस एंजाइटी पॉइंट से बाहर निकालने वाला उनको कोई सहयोगी नहीं मिल रहा। दे आर नॉट श्योर कि उनको वो टॉपिक आएगा भी या नहीं आएगा। इस कारण से ये बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी की स्टेट में है। तीसरा जो चीज हो रहा है इन बच्चों के साथ और दूसरे बच्चों के पहलुओं में मैं अगर बात करूं, तो पीयर बॉन्डिंग या पीयर सपोर्ट इस वक्त नेग्लिजिबल है। क्योंकि जब एक बच्चे को कोई चिंता होती थी, पहले स्कूल में जाते थे, आपस में मिलते थे, लड़ाई करते थे, खेलते थे, सब चीजें होती थी, एक दूसरे से बांट लेते थे। कोई क्लास वाला ही बच्चा बताता था अबे ऐसे नहीं ऐसे करना है, दूसरा कहता था नहीं तेरे को नहीं समझ में, अच्छा ये वाली मैम से पूछ ले। इस तरह से आपस में जो पीयर शेयरिंग करते थे, उससे काफी कुछ वो आयरन आउट कर लेते अपने इश्यूज को। आज वो नहीं कर पा रहे। सब चीजें सिर्फ फोन पे बात करके नहीं सुलझाई जा सकती, ये हम भी समझते हैं। खासतौर से जो लोग वर्किंग में हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि आपको किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इन बच्चों की अवस्था सोचिए कि जिनको अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए, यानी एक किसी को मतलब कोई भावना व्यक्त करनी है मित्र के प्रति, तो आप कितनी देर तक am I audible? तो आप कितनी देर तक अपनी भावनाओं को रोक पाएंगे? तो अपने क्लासमेट से, अपने बडी से जो दूरी, फिजिकल दूरी आ गई है, वो भावनाएं इन बच्चों को अंदर से एंशियस कर रही हैं। बिकॉज ये वो माहौल था जहां पर ये अपना महसूस करते थे। इट इज लाइक अ लायन इज स्टेइंग विद काउज। तो उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं शेरों के साथ रह रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि लायन एक नॉन वेज प्राणी है, अगर काऊ कहें वो घास खाने वाली प्राणी है, और लायन की प्रवृत्ति और काऊ की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। अब ये जो बच्चे हैं ये अपने हम उम्रों के साथ नहीं है, तो उनका जो मानसिक लेवल है बॉन्डिंग का, उनकी भाषा जो समझ पाए दोस्त, जो ऐसा माहौल बन पाए जहां वो कुछ भी कह सकते हैं अपने तरीके से, वो हो नहीं रहा। वो मैक्सिमम फोन पे होता है। तो वहां पर आकर के इनका अपना जो मैकेनिज्म था खुद को सपोर्ट करने का, वो गड़बड़ाया हुआ है। इट इज अगेन, अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो इट इज लाइक किसी व्यक्ति को किसी कंपनी ने सिलेक्ट करके जॉब लेटर दे दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया, और उसको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली। अब वो लेटर लेने के बाद उसको सैलरी भी पता है अपनी, उसको काम भी पता है, और उसकी नौकरी भी लग गई, उसकी वो पार्टी भी दे चुका, और वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहा। और उसमें 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, फिर 4 महीना, फिर 5 महीना आ जाए, और 5वें महीने भी उसको ये बताया जाए वी विल लेट यू नो वेरी सून व्हेन यू हैव टू ज्वाइन। तो मानसिक अवस्था क्या होगी फ्रस्ट्रेशन की, ये बच्चे उस अवस्था से गुजर रहे हैं। चौथा बड़ा पहलू जो इन बच्चों को वातावरण फेस करना पड़ रहा है, दैट इज क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट होता है कि हम अपने वातावरण से किस तरह की प्रोडक्टिव हेल्प ले करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो खासतौर से इस वक्त 12th क्लास में है, इनका टीचर, इनका ट्यूटर, इनका पेरेंट और इनके सिबलिंग्स
ये चारों अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। टीचर वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है, ट्यूटर कुछ के लिए फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, कुछ के लिए वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है, पेरेंट फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है बट वो टीचर नहीं है, सिबलिंग फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है पर वो दोस्त नहीं है। तो जो उसको फिजिकली अवेलेबल है वो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो नहीं दे पा रहा, और जो उसको वर्चुअली अवेलेबल है उससे वो अपनी सॉल्यूशन ले नहीं पा रहा। तो ये बच्चे इस जद्दोजहद में फंस गए। ये जो चार बड़े पहलू हैं ये इन बच्चों को बहुत एंक्शियस बना रहे हैं अंदर से। अक्सर वो एंजाइटी या तो व्यवहार में दिख जाती है, मोस्टली बच्चों के व्यवहार में वो अनकॉन्शियस रहती है, दिखती नहीं है, सिर्फ वो दूसरी फॉर्म्स में बाहर निकलती। आज की डेट में हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो इस वक्त फॉर्मेटिव क्लास में है, जिसको पता है कि मैं इस लाइन में, मैं इस बेंच पे लास्ट बैठा हूँ, जरा सा भी धक्का लगा तो सबसे पहले मैं गिरूंगा, तो जब वो डर लगातार सिर पर हावी रहता है, ये बच्चे उस अवस्था से गुजर रहे हैं। तो ये हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे इस वक्त जो उम्मीद हम कर रहे हैं, जैसी उम्मीद हमारे को है कि ये पढ़ाई करेंगे या ऐसे नंबर लाएंगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे। ये इन चार पहलुओं में मैंने समझाने की कोशिश करी। डेफिनेटली वर्चुअल एनवायरनमेंट की पॉजिटिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट की पॉजिटिव्स नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे इस वक्त इस माहौल के कारण, इस जनरल एंजाइटी सिंड्रोम के कारण अपने व्यवहार को या अपनी रूटीन स्ट्रेंथ्स को यूज नहीं कर पा रहे। हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, वो एक जगह टिक के पढ़ सकता था, पर आज उसकी एंजाइटी लेवल इतनी बढ़ी हुई है कि वो शायद उस जगह टिक कर बैठ ही नहीं पा रहा एक लिमिटेड समय से ज्यादा। तो वो उसका रिटेंशन लेवल भी पुअर हो रहा है, उसका अटेंशन स्पैन भी पुअर हो रहा है, उसके जवाब देने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है, उसकी कागज पे लिखने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। तो ये आज की स्थिति है कि आधा, हाफ ऑफ द क्लास 12th हैज पास्ड, बट नो वन इज इवन सेंसिंग कि ये बच्चे कितनी बड़ी एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। एंड वी आर अबाउट टू इन्फॉर्म देम एग्जाम्स आर जस्ट अबाउट 5 months अवे, बिकॉज फरवरी में समवेयर 12th के अगले एग्जाम्स होने चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो 5 महीने बाद जो इन्हें फेस करना है उसके लिए इनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, इनकी आज क्या तैयारी है, वो भी नहीं इन्हें पता। अगर आप इनकी समस्याओं को समझ पाए तो आई एम जस्ट टेकिंग द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग इट इन द रियल टर्म्स। These students are like a pregnant lady who is in the 5th month of pregnancy but is not able to sense the baby. उस माँ की एंजाइटी का लेवल क्या आप सेंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो शायद आप इन बच्चों के मन में होने वाली दुविधा को सेंस कर पाए। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये जब दुविधा इन बच्चों के मन में आ रही है तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका परिणाम, क्योंकि ये बच्चे ही फेस कर रहे हैं इसलिए मैं समझाता हूँ। दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो इन बच्चों के प्रभावित हो रहे हैं, सभी बच्चों के, अच्छे बच्चे भी और जो थोड़े रेडी, एकेडमिकली रेडी नहीं थे, उन बच्चों के साथ भी ये हो रहा है। इनका सेल्फ एस्टीम, आत्म गौरव कम हो रहा है। सेल्फ एस्टीम को एज साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। सेल्फ एस्टीम का अर्थ है द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट, वो तरीका जिसके अनुसार हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं अबाउट अवर सेल्फ, अपने खुद के बारे में। यानी हम अपने खुद के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा आचरण करते हैं, उसको अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को सम्मान देना और अपने आप में विश्वास करना, इस पूरी प्रक्रिया को सेल्फ एस्टीम कहते हैं। एक व्यक्ति ओवरऑल अपने आप को कैसा देखता है, कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और उसी से उसका आचरण, कंडक्ट आता है, इस पूरी को आत्मगौरव या सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। सेल्फ एस्टीम का फंक्शन क्या है? सेल्फ एस्टीम व्यक्ति को अपने वातावरण को फेस करने के लिए तैयार करता है। सेल्फ एस्टीम ये तय करता है कि मुश्किल के हालात में एक व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स देगा, हाउ विल अ पर्सन फेस इन टफ टाइम्स, फेस द डिफिकल्टी, रेजिलिएंट कितना बनेगा। तो जब इन बच्चों का ये एंजाइटी डायरेक्टली इनकी सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी रेजिलियंसी, इनकी कैपेसिटी टू फाइट कम हो रही है।
और दूसरा पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो उनकी पर्सनालिटी है वो किस तरह की बन रही है। देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं पर्सनालिटी बनते वक्त, एक चॉइस फैक्टर, एक चांस फैक्टर। चॉइस फैक्टर वो है जब हम चुन के एक ट्रेट अपनी पर्सनालिटी में डालते हैं। मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, मैंने फिट रहना है मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, मेरे को एक पर्टिकुलर तरह का भोजन पसंद आता है, तो वैसी एक्टिविटी और वैसी मेरी पर्सनालिटी बन जाती है। एक होता है बाय चांस, जो जब मिला खा लिया, जैसा मौका मिला वैसा कर लिया। तो ये बच्चे इस वक्त चॉइस फैक्टर से हट करके चांस फैक्टर की जिंदगी जी रहे हैं। ये इनके ऊपर दूसरा जो अनकॉन्शियस फैक्टर काम कर रहा है वो ये है। तो ऐसे में कोई बिहेवियर इनका चल जाए तो वो तीर माना जाता है, जो बिहेवियर ना चले वो तुक्का माना जाता है। तो ऐसे में जो अच्छा बच्चा भी है, कई बार वो एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करता है, वो चल जाए तो कहते हैं बहुत अच्छा, नहीं चले तो कहते हैं यार तू भी परफॉर्मेंस में कम हो गया। दिस इज व्हाट दे आर फेसिंग, कि इनकी पर्सनैलिटी चॉइस और चांस के चंगुल में उलझ गई है। अब करें तो करें क्या ना, इसका कोई एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रिपेयर्डनेस और हर व्यक्ति की रेडीनेस अलग लेवल की है। तो हमारे को एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स एंड एज अथॉरिटीज हु आर डिसाइडिंग कि स्कूल में माहौल कैसा हो, और एज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर अब हमारे सामने चैलेंज है तो क्या है, रियल चैलेंज क्या है, हम एक्चुअली अब इस वक्त क्या कर सकते हैं अगले बचे हुए 5 महीनों में, ताकि हम बेहतर तैयार हों। तो यहाँ स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव पहले मैं बताता हूँ, जो इस वक्त हमें समझना है, जो हमारी बर्निंग नीड है। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हमारे को दो चीजें बहुत पॉजिटिवली इंप्रूव करने की जरूरत है जल्दी से जल्दी। दैट इज, फर्स्ट इज क्लास। क्लास के अंदर उसका अटेंडेंस, उसका प्रेजेंस एंड उसका रेडीनेस, ये हर बच्चे को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहे, या क्लास के अंदर आप अटेंड कर रहे हो पर प्रेजेंट नहीं हो, मैं यहाँ पर अपने सारे स्टूडेंट साथियों से ये बात कहूंगा, क्योंकि मैं इन सब से, आप सब से मैं बात कर चुका हूँ आईए के दौरान। आप सब ने माना है क्लास करते हैं पर प्रेजेंट नहीं होते, ये आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अटेंडेंस लगी हुई है, कैमरा भी ऑन है, माइक भी ऑन है, बट आप क्लास में नहीं है, आप कहीं और है। जब फिजिकल क्लास होती थी तो ऐसे बच्चे को पकड़ लिया जाता था, टीचर कह देती थी कहाँ खोया हुआ है, चौक पड़ता था सीधा सिर पे आके। बट वर्चुअल क्लास में चौक नहीं आ सकता सिर के ऊपर, राइट। तो ये आपको समझना है कि यू हैव टू नॉट ओनली अटेंड दी क्लास बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दी क्लास। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको पहले से पढ़ें। टीचर जो 5 टॉपिक 10 टॉपिक करना चाह रही है, आपने 5 की जगह 7, 10 की जगह 12 टॉपिक पहले से तैयार किए हुए हैं। ये आपकी चेंज आपको लाने की जरूरत है। रेडीनेस, रेडीनेस इज, जो टीचर सवाल पूछ रही है उसका जवाब आपको, अगर आप ना भी दे पाए, कोई साथी दे रहा है कोई बात नहीं, पर आपके मन में उसका जवाब साथ साथ आना चाहिए। आपको वो क्वेश्चन नोट भी करना चाहिए, उसका जवाब भी नोट करना चाहिए अपनी कॉपी में। दैट इज योर रेडीनेस, because that is virtual participation for that question. And आपके पास कम से कम 1 या 2 सवाल हर क्लास में होने चाहिए जो आप टीचर से पूछ सके, और अगर क्लास में ना पूछ पाए तो आपको वो सवाल टीचर को उसी दिन क्लास के बाद, क्लास के दौरान टीचर को मैसेज कर देने चाहिए साथ साथ। ये है क्लास की इस वक्त की प्रिपेयर्डनेस, जो बच्चों के लेवल से हमारे को समझने और सुधारने की जरूरत है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो 2 पहलू, सिर्फ 2 पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। डिसिप्लिन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, क्रिएटिंग मोर आवर्स इन द डे। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सोएं, उठें, और जो बचा हुआ आपका एक्टिव टाइम है उसको आप अपनी एक्टिविटीज में खुद की चॉइस से डिवाइड कर लें।
और उस डिसिप्लिन को आप मेंटेन करिए। जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक सुधार की गुंजाइश कम रहेगी, आपको दिक्कतें, एंजाइटी आती रहेगी। दूसरा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में हर बार हर बच्चे से पूछता हूँ, हर बच्चे ने मेरे को बताया भी था ये प्रोग्राम के दौरान, मैं हर एक से पूछता था सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, उसको डिफाइन करने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी स्कूल की क्लास अटेंड करना नहीं होता, सेल्फ स्टडी असाइनमेंट करना भी नहीं होता, सेल्फ स्टडी ट्यूशन अटेंड करना भी नहीं होता। सेल्फ स्टडी होता है कि आप अपने लिए आपने चुने हुए विषयों को अलग से कैसे तैयार कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपना खुद का नॉलेज और नोट्स बना रहे हो, वो सेल्फ स्टडी आपको रेगुलर करने की जरूरत है। ठीक है, दो पहलू तो ये स्टूडेंट के एंगल से कहे। अब टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करने की जरूरत है, जो अगले 5 महीनों में आप बदल सकते हैं सिनेरियो। आपको अपना स्टूडेंट्स को असेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट को असेस करना है तो 3 पहलुओं को आपको असेस करना चाहिए। नंबर 1, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन क्वेश्चन, टू अ गिवन टॉपिक। सेकंड, स्पीड ऑफ दैट रिस्पॉन्स, कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड दे पा रहा है। ठीक है। तीसरा, कन्विक्शन इन योर सब्जेक्ट, क्या बच्चा आपके सब्जेक्ट में कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है या नहीं। अगर ये 3 चीजों पे आपका असेसमेंट बेस्ड नहीं होगा तो सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। आप जो भी असेसमेंट के तरीके निकालें, आपको ये 3 चीजें उसमें असेस जरूर करनी होगी आने वाले 5 महीनों में। अगर आप ये नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं you will not be able to give that kind of penetrative input to your students as is needed. Because आप सब ये रियलाइज करते हैं कि ये तीनों चीजें आज की डेट में रियल टाइम पे नहीं है। तीसरा, पेरेंट का पर्सपेक्टिव। पेरेंट को क्या करना है? पेरेंट को 3 एस्पेक्ट बच्चे के कंट्रोल करने हैं। नॉट एज पेरेंट, माता पिता बनकर नहीं, आपको टीचर बन के वो 3 एस्पेक्ट कंट्रोल करने हैं। वो क्या? बच्चे का डिसिप्लिन, that is time utilization, second control, and तीसरा feedback. टाइम यूटिलाइजेशन आप कंट्रोल और फीडबैक, फीडबैक के अंदर आप उसके टीचर को या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके बच्चे के साथ मानसिक रूप से क्लोज है, या उसको आप एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरह से यूज कर सकते हैं। बट ये 3 चीजों पे आपको माँ या बाप बन के नहीं, आपको टीचर बन के इवैल्यूएट करना है। अगर आप माँ बाप बन के इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने रोल में पिछड़ जाएंगे। बिकॉज माँ की ममता और बाप की बापता दोनों बीच में आ जाए। बापता ये शब्द कम यूज होता है, पर हम कॉलेज में यूज किया करते थे तो मैंने वैसे ही बोला। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें एज अ स्कूल, एज अ कम्युनिटी करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत जरूरी बात है कि जब ये सब हम पहलू समझ रहे हैं तो एज अ कम्युनिटी में आते हैं टीचर्स भी, पेरेंट भी, स्टूडेंट्स भी। हमें एज अ कम्युनिटी ग्रुप क्या करना है? हमें जो बड़े हैं, मैं पहले बड़ों पे ध्यान दूंगा, टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, तो हमारे को 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगले 5 महीने बहुत जरूरी, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। पहला, हम अपने बच्चों के लिए एम्पैथेटिक रहें। एम्पैथेटिक का अर्थ सिंपल इतना है कि हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी डिफिकल्टी को बच्चे के नजरिए से देखें, अपने नजरिए से ना देखें। दैट इज 1 पॉइंट मीनिंग। दूसरा, हम बच्चे के प्रति सेंसिटिव रहें, संवेदनशील रहें, निग्लेक्ट ना करें, ओवर प्रोटेक्ट भी ना करें। हम बच्चे को किसी भी चीज की अधिकता या कम होना, दोनों ही चीजें ना होना। हम बच्चे की जरूरत के प्रति सेंसिटिव रहें। अगर उसकी जरूरत है तो एक पर्टिकुलर चीज करें, अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है, उस चीज को सेंस करें और उस चीज को कंट्रोल करें। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, दैट हम बच्चे के पास अवेलेबल रहें, उपलब्ध रहें। बच्चे को जरूरत है, माँ की तो माँ उपलब्ध हो, बाप की तो बाप उपलब्ध हो, टीचर की तो टीचर उपलब्ध हो। अगर ये चीज नहीं हो रही तो एज अ कम्युनिटी हम फेल हो जाएंगे।
तो एज अ कम्युनिटी बिहेवियर, एज एल्डर्स, हमें 3 बिहेवियर इवॉल्व करने हैं अगले 5 महीने के लिए: एम्पैथी, सेंसिटिविटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे को इस वक्त करने। और दूसरा पॉइंट इस पे ऐड करूंगा, एज अ कम्युनिटी, क्योंकि अगेन हम बड़ों की जिम्मेदारी है, टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वी मस्ट रिड्यूस द गैप ऑफ वी एंड देम। हम बड़े हैं, ये बच्चे हैं, छोटे हैं, वी एंड देम के गैप को हमें कम करना है। एंड लेट अस स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ टीम। वी नीड टू टीम अप, बिकॉज अगर अगले 5 महीने में कोई अच्छा परिणाम, बड़ा परिणाम हमें लाना है, कोई बड़ा बदलाव लाना है, तो टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट have to operate as one unit. अगर ये यूनिट ऐसी नहीं हम बना पाए तो कहीं ना कहीं हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं हमें प्राप्त करने चाहिए। अब प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो लोग महावीर स्कूल के नहीं है वो भी इस चीज को, इस बात को आज सुन रहे हैं या शायद आगे सुनेंगे, तो उनके लिए भी, और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं 2 सजेशंस यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला, जो भी बच्चे हैं 12th क्लास के, हमारे स्कूल के भी जो सुन रहे हैं और जो दूसरे स्कूल के भी हैं कहीं के भी, they can all register on my portal www.ciment.com as students, and ये करने से वो हर महीने अपनी 2 क्वेरीज मेरे को ईमेल कर सकते हैं और मैं उनके साथ 1-to-1 कांटेक्ट बना के उनकी उस समस्या को सॉल्व करूंगा थ्रू ईमेल ओनली। तो हर 15 दिन में वो अपने प्रोग्रेस के बारे में एक ईमेल मुझे लिख सकते हैं, अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको लगातार मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.ciment.com, PSYMENT, ciment.com, और उस पर आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर दीजिए। आप ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज कॉन्फिडेंशियल एंड देयर इज नो फियर फैक्टर। एंड आप किसी भी विषय पर, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हो, चाहे वो दोस्तों से जुड़ा हो, चाहे माता पिता से जुड़ा हो या किसी और सामाजिक पहलू से जुड़ा हो, आप अपनी बात मुझसे पूछ सकते हैं और अपने मन की चिंता को दूर कर सकते हैं। मैं आपको आपका कस्टमाइज्ड जवाब दूंगा। दूसरा सजेशन नंबर 2, ये प्राइमरीली महावीर स्कूल के बच्चों के लिए ही है, दूसरे बच्चों को तो शायद मैं अभी ये नहीं ऑफर कर पाऊंगा। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू 3 कंडीशंस। पहला, कि स्कूल की अथॉरिटीज इसकी इजाजत दें। दूसरा, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हों। और तीसरा, पेरेंट्स भी इसके अंदर योगदान देने को अगर तैयार हैं तो। ये 3 चीजों अगर यस हैं तो मैं एक एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाह रहा हूँ। एंड वो क्या है, मैं, जैसा मैंने अभी बताया कि अगले 5 महीने के लिए हमारे को एज टीचर्स, पेरेंट्स एंड एज स्टूडेंट्स टीम अप करने की जरूरत है, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ आज प्रपोज कर रहा हूँ कि हम एक सेल्फ मॉनिटरिंग फॉर्म बनाएं जिसके अंदर मैं कुछ साइकोलॉजिकल पहलू बच्चे के दिन को ऑर्गेनाइज करने के और सेल्फ बिहेवियर्स के, वो उसके मैं डिजाइन करके दे दूं। और सभी बच्चे जो उसमें विलफुली पार्टिसिपेट करना चाहें, अगले 4 महीने के लिए 4 फेजेस में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में मेरी मदद करें। क्या करना है कि वो फॉर्म आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने उसको मंडे टू सैटरडे फिल करना है और अपने माता पिता को जमा कर देना। 2 मिनट लगेंगे आपको, 2 मिनट प्रतिदिन, जस्ट 2 मिनट्स पर डे। एट द एंड ऑफ द डे फिल अप दैट फॉर्म एंड कीप फिलिंग इट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड सैटरडे नाइट को आप या संडे मॉर्निंग को आप अपने पेरेंट को जमा करा। फिर वहां से पेरेंट का रोल शुरू होता है। अगले दिन पेरेंट अपने वाले कॉलम में जो उस पे मैंने लिखा होगा वो उसमें लिखें और संडे की संडे वो पूरा करके मंडे मॉर्निंग वो अपने बच्चे की क्लास टीचर को जमा करा। और क्लास टीचर उसके बाद जो उनका सेक्शन उस फॉर्म में बना होगा उस पे अपने रिमार्क्स लिख करके वो स्कूल प्रिंसिपल को जमा करा अगले दिन ट्यूसडे तक। और स्कूल प्रिंसिपल को अगले 2 दिन के अंदर, यानी बाय वेडनेसडे इवनिंग, वो फॉर्म एज इट इज सबके द्वारा भरा गया हफ्ते का फॉर्म मेरे को ईमेल कर दे या मेरे तक पहुंचा दे। और मैं उसके बाद विद इन नेक्स्ट 3 डेज हर एक फॉर्म को इवेल्युएट करके जहां कमी आ रही है, जो अच्छा हो रहा है या जो खराब हो रहा है, उसको चेक करके सजेशंस के साथ कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बना करके हर बच्चे को वापस पहुंचा दूंगा। यानी हर
7 दिन के अंदर आपका पिछले हफ्ते का फीडबैक आपके पास फीडबैक बन के आता रहेगा कि आपको क्या कम करने की जरूरत है, क्या बढ़ाने की जरूरत है। और इस चीज को हम 4 फेजेस में, 4 मंथली फेजेस में करें। पहला फेज हम सितंबर 1 से शुरू कर सकते हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हम इसको कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रेसिवली, मैं बच्चों को बता रहा हूँ पहले से ही, प्रोग्रेसिवली मैं आपका सेल्फ स्टडी टाइम और टाइम डिसिप्लिन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी कैपेसिटी बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा। अब ये पूरा जो है बिना बच्चों के सहयोग के, बिना आपके विलफुल पार्टिसिपेशन के पूरा नहीं हो सकता। और इसकी कोई कीमत नहीं लग रही, सिर्फ इसकी कीमत यह है कि आप डेडिकेटेड होकर ये काम करें। इसके अंदर 2 पहलू और हैं कि ये कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, जरूरी नहीं है आप करें। अगर आपको उचित लग रहा है ये सुझाव तो मे बी एज अ टीम वी कैन इवॉल्व एज अ सॉल्यूशन। मैं रुचिका जी से और सभी टीचर्स से और डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हम एक स्ट्रैटेजी बना करके, यदि आप इजाजत दें तो अगले 5-7 दिन में हम इसे इवॉल्व करके सभी बच्चों को लूप में ले सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए, ओनली बाय सेल्फ चॉइस, ठीक है। बट यस, जो इसमें आना चाह रहा है वहां पर नो हाफ मेजर्स, उसमें इनकम्प्लीट, रॉन्ग आना, लेट आना या मिस करना, वो चीज अलाउड नहीं होगी। तो अगर आप इस ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेटेजी पे चलना चाहें तो मैं आपके साथ इस यात्रा पे निकलने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे सारे बच्चे इस एंजाइटी फेज से बाहर निकले और अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से अपनी अपनी इस यात्रा को अपनी मंजिल तक पहुंचा पाए। बिकॉज अगर एक भी स्टेप इसका हमने छूट गया, एक भी स्टेप यदि हमसे छूट जाएगा तो यकीन मानिए सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। एनी स्टूडेंट, एनी टीचर, एनी पेरेंट कैन गिव मी एनी क्वेश्चन। आई एम ओपन टू क्वेश्चन। थैंक यू। Morning, sir. Am I audible? Yes. Thank you so much, sir. It has been really an enriching session. Just one question I would like to ask. What is the impact of guidance and counseling on students' academic performance other than behavioral changes? Ma'am, all sorts of guiding and counseling, if they are goal directed, they will definitely potentiate the positive response behaviors. If it is not goal directed, then it may offset the child, because जैसे अगर किसी को विटामिन की कमी नहीं है और आप विटामिन खिला रहे हैं तो वो उसको शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो अगर बच्चे को जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, अगर बच्चे की उसकी रियल जरूरत नहीं है तब वो वेस्ट जाएगा। अदरवाइज all sorts of guidance and counseling potentiates the positive behavior in children. Thank you, sir. Yeah. Excuse me, sir. Yeah. Am I audible? Yeah. Sir, my question is, sir, I am facing a procrastination for the past 15 to 20 days. So please tell me the solution. बेटा, these things have to be tackled in privacy. आप मुझे अपना साइट पर जाकर रजिस्टर कीजिए, अपना रियल इंसिडेंट्स पूरी डिटेल में लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। बट मैं चाहूंगा पब्लिक में इस चीज को ना डिस्कस करें। Okay, sir. Good morning, sir. जी। Sir, I want to ask a question. Sir, how to पहले manage? मैं एक सवाल आपसे पूछूं? Yes, sir. आपका नाम? Sir, Akshit Jain, sir. Sir, 12C, sir. Now tell me कि जो बातें मैंने बताई, क्या आप लोग ये एंजाइटी फेस कर रहे हो? Sir, yes, sir. पैनिकनेस हो जाती है थोड़ी सी टेस्ट के। अब पूछिए। Sir, how to manage the all 5 subjects at a time? Sir, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, वैसे अगेन मैं इसका जवाब कस्टमाइज देना चाहूंगा, बट टू बिगिन विद मैं आपसे ये कहूंगा, फोकस ऑन योर टॉप 3 सब्जेक्ट्स। एंड जब आप सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें तो टॉप 3 सब्जेक्ट्स पे आप अपने ध्यान दें। हर बच्चे के लिए अपने टॉप 3 सब्जेक्ट अलग होंगे और ये टॉप 3 सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए एज पर योर गोल, नॉट एज पर योर लाइक। अगर आपका गोल सपोज डॉक्टर बनना है तो नीट को क्लियर कराने के लिए जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं
वो आपके टॉप 3 चॉइस सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपकी सेल्फ स्टडी का मैक्सिमम टाइम लें. दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज, आप अपनी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों स्किल्स को बार बार असेस करें. ऑब्जेक्टिव स्किल्स के लिए आप जो वन आंसर या शॉर्ट आंसर है उस पर ध्यान दें, और जो सब्जेक्टिव स्किल्स है जहां पर मुझे लगता है आज की डेट में बहुत बड़ी कमजोरी आ रही है, वो है किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें और फिर किसी भी टीचर से चेक करवाएं. एंड ये 2 चीजों को आप लगातार करें, आपको डेफिनेटली सुधार मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Good morning, sir. Okay. Sir, am I audible? Please introduce yourself. Sir, Jia this side, student of class 12B, commerce stream. Yes. Sir, I would like to comment on this. Like आपने जो भी बोला वो बिल्कुल सही था. आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए. इनफैक्ट जब आर्ग्यूमेंट होता है बाद में हमें फील भी होता है कि हाँ हमने गलत बोल दिया है. हम भी समझते हैं पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अंडरस्टैंड होती है हमें ये चीज भी सारी, बट पेरेंट्स को लगता है 4 क्लासेस तो लिए, इट्स ओके, तुम इतना थक गए हो, पता नहीं क्या हो गया. नींद इतनी ज्यादा आती है, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब नेक्स्ट लेवल आती है. नींद हो ही नहीं रही कंट्रोल. और एक दिन 24 घंटे सोकर देखो जिया. नहीं. ट्राई स्लीपिंग फॉर 24 आवर्स अ डे. पर आप अगले दिन नींद से लगे कि अब जागना ज्यादा होने लगा. Have you ever tried this? No, sir. No. But then coming to the serious part of it, जिया आप अपने रूटीन को डिटेल में लिखिए, मुझे ईमेल करिए, मैं आपको जवाब दूंगा और बहुत जल्दी अगर कोशिश करेंगे तो मिलेंगे. सर एक चीज और थी, लाइक मम्मा को भी लगता है कि पढ़ रहे हैं 4 क्लासेस तो है, बट वो 4 क्लासेस जो होती हैं वो भी थका देती है. लाइक ब्रेन यूज होता है, जहाँ मेंटल हेल्थ यूज होती है, जहाँ दिमाग यूज होता है, वहां पे भी इंसान थक जाता है. या तो आप फिजिकली काम कर सकते हो या मेंटली काम कर सकते हो जी. तो उसके अंदर भी इनफैक्ट सर मेरी इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ. लाइक मैं क्लास में जवाब भी देती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ. 1 घंटा मुझे निकालना होता है. एक होता है कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ो गधों की तरह, वो नहीं होना चाहिए. नहीं, गधा नहीं कहते, पूरा दिन पढ़ने वाले को गधा नहीं कहते. जी सर बट 1 घंटा आप पढ़ लो, बट एटलीस्ट फोकस के साथ पढ़ो. तो मेरा वही है कि मैं एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ती हूँ, बट दिमाग लगा के पढ़ती हूँ, पर फिर भी सर मार्क्स नहीं आ रहे. आई डोंट नो व्हाई. आपकी आवाज में ही एंजाइटी झलक रही है. यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ. इसीलिए मैंने आपको कहा आप अपनी पूरी डिटेल, पूरा अपने दिनचर्या मुझे डिटेल में ईमेल में लिखिए एंड आई विल सॉर्ट इट आउट. कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आप चाह रहे हो कहना पर कह नहीं पा रहे. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Next question. Sir, I will discuss this 2 cases in my class separately also, but here I want to just mention, like, without the name you can discuss if you want. Yes, sir. This is what I am doing. Sir, in my class there is one case. I had a word with the parent also, and the parents themselves are also feeling very helpless. The child is not at all listening to the parent, and neither, she's following us. So, in fact, the parent was very upset, and she was saying that she never listens to me, and maybe they are not so well educated with this online thing. So she is also making fool of them. So under that situation, sir, what do you think, that how can we help the parent and the child? Because we have also counseled the child in front of us. The child is, accepting everything and saying, yes, I'll do. But on the other side, when I had a word with the parent, then she was also feeling very helpless. She said that she's not, obeying us. She has a very rebelling kind of behavior. And apart from that, if they will say anything more than that, then she is, kind of threatening in a kind of sense that they are fearful that she might do something or like this. So under that situation, sir, what should we do, or what the parents should do? मैम एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. सपोज आप एक दिन क्लास ले रहे हो और उस दिन आप तैयार नहीं हो. यू आर टेकिंग अ Zoom क्लास एंड दैट डे यू आर नॉट रेडी. यानी आप घर के कपड़े पहने हुए हैं और आप मतलब यू आर नॉट इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म, बट आप क्लास ले रहे हो कैमरा ऑफ करके सपोज, और सडनली कैमरा ऑन हो जाए तो क्या होगा?
Sir, definitely I'll feel embarrassed. No, embarrassments के अलावा you would immediately try to correct your pose or Yeah. how you are appearing. You will try to do your hair and adjust your, dress up and all, right? The same way, exactly like this, मैं 2-3 चीजें सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को और बच्चों को आज बताना चाहूंगा। आज के माहौल में ये मान लेना कि हमारे बच्चे या पेरेंट्स मोबाइल या टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है, इट इज लिविंग इन एलिस इन वंडरलैंड काइंड ऑफ अ थिंग। मुझे लगता है सभी पेरेंट्स आज की डेट में रीजनेबली अच्छे लेवल तक मोबाइल से भी टेक से भी हैं। हाँ, हम कुछ सिचुएशंस में वो बताना पसंद करते हैं, कुछ सिचुएशन में बताना पसंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। पहली चीज। नंबर 2, किसी भी पेरेंट या बच्चे के लिए मोबाइल का कनेक्शन या डेटा का कनेक्शन या इस तरह का चीज अगर दिक्कत बन रहा है तो वहां पर मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम, मैन मेड प्रॉब्लम तो है, टेक्नोलॉजी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक थिंग्स है। अब बात आती है कि बच्चा आपकी बात को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। 1, परहैप्स या तो आप या माँ पिता बच्चे को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। हो सकता है इट इज जस्ट लाइक हम एक जापानीज कंट्री में कहीं पहुंच जाए जहाँ लोग जापानीज में बोल रहे हैं, वो हमारी मदद करना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बच्चे की या तो कुछ कही हुई बात या कुछ अनकही हुई बात समझ में नहीं आ रही या समझी नहीं जा रही, जिस कारण से उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट रहा है। दूसरा, पेरेंट्स को, जहां तक आपने कहा, फूल दी पेरेंट्स एंड ट्राई टू थ्रेटन देम लेटर ऑन कि मैं ये कर लूंगी या वो कर लूंगी। तो इस चीज में भी बात जहां आती है, अगेन दीज थिंग्स इंडिकेट 2 थिंग्स। देयर इज अ एंजाइटी इन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, नंबर 1. Number 2, child is actually subject to some external influence which is giving a sense of protection to the child and making him not participate in the regular education process. यहाँ पर इस बच्चे के साथ बात करने की जरूरत है, उसको ये बताने की जरूरत है कि भैया हम समझ भी रहे हैं तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और कैसा कर रहे हो, और हम इस चीज से भी नहीं डरते कि आप जो हमें धमकी दे रहे हो या इस तरह का ट्रांजैक्शन करने का कोशिश कर रहे हो। इसमें डर की बजाय एक विश्वास का माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। बच्चे को उसके स्तर पर जा करके वापस उसका विश्वास जगा करके एजुकेशन में लाने की यहाँ जरूरत है। मैं ऐसे में चाहूंगा कि ये जो पेरेंट है और जो बच्चा है, और मे भी अगर आप भी आना चाहें तो हम एक जूम मीटिंग रख करके कुछ बिगिनिंग यहाँ कर सकते हैं, एंड देन उस केस के बारीकी वाले पहलू में समझ करके आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Exactly, sir. Myself is Bhavna Agarwal. I'm heading the social science department and teaching accountancy. Sir, I have a divided opinion. When I go to a particular section or majority of the students over there, the students are so good that at times I feel that I have too much to learn from the students. On the other side, as you rightly striking on the point just now, the students are venturing into some other things which are becoming very lucrative from them, even to the extent of financial also. As I have come to know, and parents are actually, I'll use the word scared to talk to the students or the child or the ward to please go and attend the class. You can continue or you can balance out both the things. So this is a situation which you just now were talking about with few students, I would say very counted one, but that is the problem coming up with certain chunk of the students, of course. मैम मैं यहाँ पर रेफर करूंगा क्योंकि आपने शायद इस तरह का कुछ मेरे से पहले भी डिस्कस किया था, तो मैं इस प्रॉब्लम को पूरे लार्जर ग्रुप के बेनिफिट के लिए डायरेक्टली एड्रेस करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसी चीजों में एंगेज हैं जो शायद उनको फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आजकल ऐसी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उदाहरण के लिए ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां आपको एक लिमिटेड अर्निंग का भी सोर्स अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ों में अगर हम चले जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे का ध्यान पढ़ाई से या आपकी बताई हुई बात से भटक जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें समझाने की ज़रूरत है बच्चे को या उसके माता पिता को, कि एक तो ये है कि जिसे हम वो मुर्गी वाली कहानी कहते थे कि अगर आप अपने लिए खुद का एक सोने का अंडे देने वाली मुर्गी हो तो आपको एक ही अंडा चाहिए,
और उसके बाद मुर्गी मार दें, या आपको लगातार जीवन भर कामयाब रहना है, ये आपके ऊपर है। इसी प्रकार से बच्चे को उसका सेल्फ इवैल्यूएशन करा करके हमें उस दिशा में लाना पड़ेगा कि आप ज्यादा प्रतिभा रखते हो, आप एक मल्टीटास्कर हो, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी जड़ें मजबूत हों, और उन जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको पढ़ाई की तरफ और खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने की तरफ आना पड़ेगा। जहां तक अर्निंग की बात है, अर्निंग कैन बी अ very small part of your current routine, but learning should be a major part of your routine. ये हमें उस बच्चे को समझाना पड़ेगा काउंसलिंग कर। तो ऐसा जो भी बच्चा है, केस टू केस, please make them register on the site and write their issue to me, or maybe tell their parent to talk to me. Definitely यहाँ काउंसलिंग की आवश्यकता है। Yeah, true. Next question. Any other question? Thank you so much, sir. Using this platform, I would like to tell all the parents, and I would like to reassure all the students that we are always there for you. You just need to reach out to us, and you will always find us available for you in whatever capacity you want. Sir, I have received a question from the parent wherein she is asking that, can you please specify what do you mean by feedback? You said the 3 important things for the parents to be done are to keep the students in discipline, control, and third was feedback. So she wants to know as to what do you mean by feedback? Ma'am, feedback के मेरे यहाँ पर 2 अर्थ हैं. Suppose you are transacting any issue with the class teacher. तो suppose आपको क्लास टीचर ने कहा आपका बच्चा क्लास में नहीं आया. अब आपने उनसे कुछ डिस्कस किया, फिर आपने स्ट्रेटेजी बनाई, बच्चे से डिस्कस किया. अब इस स्ट्रेटेजी का बच्चे पे जो असर है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लास टीचर को नहीं पता चलता. तो वो फीडबैक क्लास टीचर तक जाना जरूरी है. और फिर उसके बाद जो सेकंड उनका फीडबैक आता है वो वापस आपके पास आएगा. फिर यानी फीडबैक का अर्थ ये है कि जहां पेरेंट टीचर के साथ एक यूनिट बन के काम कर रहा है कि स्टेप 1 हुआ तो स्टेप 2 भी होगा. बहुत अक्सर हम क्या करते हैं, हमने टीचर को एक बात कही, टीचर ने कुछ कहा, ओके मैम, थैंक यू मैम, एंड देन फिर हम भूल जाते हैं. फिर हम अगली बार टीचर से बात करते हैं जब अगली समस्या आती है. हम ये भी नहीं बताते कि हाँ आपसे जो हमने बात की थी उसका ये परिणाम हुआ, या इसका ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, आपकी बात यहाँ तक सही थी या यहाँ तक इसका असर नहीं हुआ, या मुझे फायदा नहीं हो रहा. हमें किसी भी व्यक्ति से, चाहे आप टीचर से बात करें, उदाहरण के लिए मेरे से अगर आप बात करें तो आई वुड बी 1% जो आपको बार बार बताएगा कि मैंने ये कर लिया, अब ये रह गया, इतना और करना है. तो वो एक सिंगल इवेंट की बजाय इट शुड बी अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू योर चाइल्ड. तो उस चीज को मैं फीडबैक कहता हूँ. अगर हम इसको ये मान ले कि हम बच्चे को बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, हम ये मान ले कि अगर बच्चा ठीक हो गया तो अब हम डॉक्टर को भूल जाएं. नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाके बताना पड़ेगा कि आपने दवाई दी थी, 5 दिन की दी थी, मैंने 2 दिन खिलाई, 2 ही दिन में ठीक हो गया, बाकी 3 दिन की दवाई वापस कर दूं या फेंक दूं या बचा के रखूं, अगली बार काम आएगी. हम डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाते फीडबैक देने. यहाँ आपको टीचर के पास दोबारा जाना है, बार बार जाना है. ये फीडबैक का. Thank you so much, sir. I think it's a very significant part for any healthy interaction. Thank you. Should I take over, ma'am? Today's session was just not another episode in the life of students. In fact, it will prove to be a turning point in the lives of those sitting here only if they follow it. The guidance given to them today will lay a deep foundation for the bright future tomorrow. Thank you, Ashish sir, for a very well-carved session. We are indebted to you. I think all of you will agree that the examples quoted by Ashish sir, all of us can identify with those examples in our daily life. Sir, the example that you gave, that boarding pass hai, but plane kab udega? This is the uncertainty that all of us are facing. I would also like to share one small example from a person whom I know very well. The child got recruited in a MNC, Amazon, and the email that the child received was,
your interviews are clear, but since head count is full and the times are bad, we will not be able to recruit you. तो सर जैसे आप कह रहे थे कि उस टाइम क्या मानसिक स्थिति होती है बच्चे की, so we are facing that problem. All of us are facing some or the other way, but yes, we have to cope up with all these things because these things are going to stay for some more time. And this we as parents, as students and teachers have to understand this. Mr. Ashish Agarwal, the guiding star, the ray of hope, the savior and rescuer of this talented lot, is always there to help us. Only we have to seek him to take his help if you are in problem. So we are really thankful to you. Today we are fortunate to have amidst us our leaders, our mentors, our guides. We are fortunate to have Reverend Shripal Jainji with us. Thank you so much, sir. Your benign presence is really boosting for us. May I humbly request you to share your views, sir. We'll be glad to hear you, sir. Sir, you are muted. You are, please unmute. Thank you, sir. Thank you so much. Am I audible now? Yes, sir. You're audible. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Sir, you're audible. You're audible. Okay. It's been such a wonderful exchange of communication. I think if parents, to be specific with this, the parents have to play a very, very big role in bridging the gap between the student and the teacher. And Mr. Ashish Agarwal is, such a talented and multifaceted person. I mean, the parents should be feeling lucky to have him as a bridge between their child and themselves. Thank you very much, Ashish, and all the faculty members who have joined, and as well as the parents. Parents must involve themselves to get benefits from Mr. Ashish Agarwal, and the role he is playing is extraordinary. Thank you, Ashish, once again. It's been, I'm delighted to be part of the webinar, although, I have learned so many things from you that I keep on learning every day in personal interactions with you. Thank you very much. I'm honored, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. We are proud to have amidst us Mr. Prashant Jainji. As a member of GenX, may I request Mr. Prashant Jainji to enlighten us by his views. So please. Good morning, parents and all the teachers and the fraternity of the school. Good morning, sir. We are really proud to have this webinar, and every time, being almost so old also, we have takeaways from his webinars. So many relatable instances. We see them, but we don't know them. Now, since they are being talked about, we can relate them, and there are takeaways from it. So it is very enriching, and thank you so much, Mr. Ashish, for taking so much time out in preparation of this, and a lot of things that goes behind it. We are really grateful as a management to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Perhaps you will not believe how much your presence mean to us. The session will be incomplete without the guidance and blessings of our Honorable Director, sir. We'll be unfortunate if we do not benefit from the experience of one of the best educationists of the millennium. May I request our Director, sir, to please illumine our path. Sir, please. Thank you, Kanchan. Shripal ji, Prashant ji, Ashish ji, Ruchika ji, and all the parents, students. Jai Jinendra to you. Jai Jinendra, sir. It is that the tough times do not last. It is tough people who last. So when failure is there, then we must train ourselves to face failure. And failure is never permanent. One failure after another, then third time we are definitely going to succeed. So our training, the tips that Ashish has given today,
for the parents, for the teachers, and for the students are so very valuable in our day-to-day life. Because what I find is the triumvirate of parents, teachers, and students is so beautiful. And then the school's infrastructure, school management also come in, and child is in the center of the every scheme of things. And therefore, when the parents are aware, the teachers are aware, we know our role, and the student is to be guided. And the students these days are very alert, very aware of so many things. Sometimes we lack in taking action. So if we are determined and we take action as per our awareness, our acceptance, alertness, then I think road to success is always there. I think, Ashish, you have done a wonderful job. The kind of preparation that you have done, and you fielded all the questions so very well with a sixer. And I think the students will get back to you, the teachers will get back to you, the parents will get back to you for their own personal, private kind of counseling and guidance that you have provide to them. Thank you so much. Thank you, Ruchika, for organizing this meeting, and we all have benefited. Thank you very much. And the song that you played in the beginning, I think we should end with this song because Shripalji was not present at that time. If it is possible, can we play that song? Because this gives us so much of energy and so much of hope and faith in the Almighty God. These are pollution days. So I think listening to that song again will be a very good idea. Please, this is my request. Sir, give me a minute. I definitely play it. Just give me a minute, please. Sir, just give me a minute. Bhavna ma'am, may I request you to propose vote of thanks till then? Kanchal ma'am is getting ready. Ji ma'am, thanks a lot. Thank you. At the onset, Ashish sir, on the behalf of Mahavira fraternity, I wish you all the best for the initiative of that mental health initiative of the advertisement of which has come out today, as Sir Director Sir was saying, are all best wishes for this venture, sir. That is Cyanide. And what to say, if I summarize into two particular things which I can use is, whenever you interact, your research-oriented approach and the so articulately flow of thoughts coming up is your USP, sir. It takes us all to give the direction to our thinking and think over it, actually logically and objective oriented. Coming to that, जो आपने हमें आज बताया, please. Shall I stop? Because this is there on the screen. Oh, ma'am, you continue. Bhavna ma'am, she will play after you finish. जी, thank you. आशीष सर, मुझे लगता है हमारे स्कूल में जो एक चीज हमें नजर आई सबसे बड़ी, कि जो शायद बाकी स्कूलों में कितना हो रहा है, instead of going for that commercial services being provided of this providing this support, हम लोगों ने अपने स्कूल में जो मॉडल डेवलप किया कि बिल्कुल आपको आपका अपना is available, Ashish sir, to bridge up the gap, as sir rightly said, that to bridge up the gap between the stereotype picture of the parent and the student, ये gap जो bridge हो रहा है और इतने अपनेपन के साथ हो रहा है, I think that is an exemplary example for all the Delhi schools which we are at least in Delhi. So that is something strikingly good on our part, and we really owe a lot to you, sir. Thanks a lot for being so articulate in your approach. Thanks a lot. Thank you. And I cannot but agree with what you have said. And sir, will surely get back to you, the parent community, the teachers community, the students fraternity, all of us. Sir, with your permission, should I play the song once again? हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन
नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks everybody for being with us today. Thank you, Ashish sir. Thank you all the teachers. Thank you all the parents. Thank you all the members of the management. Thank you, Shripal ji. Thank you, Prashant sir ji. Thank you, Ruchika ma'am. Thank you so much. And thank you, team webinar, who organized this. All the coordinators, everybody. Thank you. On this musical note, I thank everybody. I thank Ashish sir for taking out this time, and not only taking out this time, right from conceiving the entire concept and then carrying through the entire process. I think the entire journey had been very, very enjoyable, and I have myself learned a lot from this journey. And of course, the second phase of it, all of us, all the community, as he said, we have to work together and do it for our students, do it for ourselves. Thank you so much, everyone, for joining. Thanks a lot.